students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts. My today's video is for class 11 students, and from the comment section I came to know that students are interested in theory part also. So I made this video from your theory part only, and today I have taken the topic basic terms of accounting. That means as accounts is a new subject for you people, so there are certain terms which are used in accounts. So that terms today I am going to explain you all. So without wasting time, let's start. So students, जो आपका next topic from your theory part is your basic terms of accounting. Okay, accounts के जो basic terms हैं जिनको कि आप पढ़ते हैं while making the accounts, while passing the journal entries and while doing your accounts subject work. Okay, so first of all I am taking these terms are very common in your transactions. So when you will become aware of the terms, you will be able to pass the entries in a good manner. Okay. So first term which is there in your accounts is the event. Event. Whenever we talk about the event, event means anything which happens. Okay. So any occasion also you can say, but in accounts we call the event as the transaction or the dealing done or the activity done by the business. So although event is not used directly in your accounts, they will take the second term, that is transaction. That means event of financial nature are treated as transaction in accounts. Okay, so they both are related with each other. The second term, the transaction. Transaction means whatever activity of the business is there and which is of financial nature, financial character. Financial matlab money se related. Okay, so that we call as the transaction happened or transaction took place in the accounts or in the business. So we record the transaction of financial nature in the books of accounts. Okay, next, third comes the voucher. Now what are the vouchers? Vouchers are the document which are relevant as a proof while recording the transaction. जब भी कोई transaction business में record होती है तो उसके लिए कुछ document support उसको करते हैं. Like अगर आप कोई भी चीज record करते हैं तो उसके लिए आपको एक bill चाहिए, है ना? That you have made the payment, you have received the payment like this. So वो जो document होता है उसको हम whenever the payment is given or received, the voucher is signed. So from the vouchers only the recording is done. Next comes the trade debtors. Because these terms I am discussing in short manner only. Why? Because ये आपके short में ही आते हैं. Okay? So ये तीन आपके जो starting वाले हैं, they are very rarely asked, you can say. But next comes the trade debtor, which is very much useful in your accounting part. Who are the trade debtors? Now, debtors are the person to whom the business is selling the goods on credit. Debtors वो person है जिनको की goods sale की जाती हैं on credit basis. Credit का मतलब होता है उधार पे. Okay? Like अगर I am running a business and I am selling the goods on credit basis, मैं उनको उधार पे दे रही हूँ X को, तो X will become my debtor. Okay? And he will make the payment after some date. इसके लिए आप एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे कि अगर आप एक अपने घर के आसपास की शॉप से कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, ओके, एंड यू मेक द पेमेंट टू दैट पर्सन सेलर. सो यू हैव मेड द पेमेंट, सो ही विल नॉट राइट योर नेम इन हिज बुक्स. ओके, बट लेकिन अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हैं ऑन द स्पॉट, सो ही विल मेक एन अकाउंट इन हिज बुक्स फॉर योर नेम. ओके, वो आपके नाम से एक अकाउंट बना लेगा कि इस पर्सन ने आज 2000 की सामान खरीदा, फिर अगले दिन आप जाएंगे तो आपने 1000 रुपए का खरीदा, उससे अगले दिन गए तो 500 का खरीदा, लाइक दिस. सो वो रिकॉर्ड करता चला जाएगा. एंड व्हेन यू विल मेक द पेमेंट, ही विल डिडक्ट दैट अमाउंट एंड देन रिमेनिंग विल बी द बैलेंस. ओके, सो इसी तरह से हम बोलते हैं डेटर्स आर द पर्सन टू whom the goods are sold on credit basis. ठीक है, यानी जिनको भी उधार पे सामान बेचा जाएगा, वो जो पर्सन होंगे जो कि आपको कुछ समय बाद पेमेंट करेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज डेटर्स. फिर आ जाते हैं हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स. अब क्रेडिटर्स जो है वो डेटर्स से बिल्कुल ऑपोजिट है. क्रेडिटर्स आर द पर्सन टू whom फ्रॉम whom वी आर परचेजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट.
अब क्रेडिटर्स कौन है? जिनसे हम सामान यानी बिजनेस इज परचेजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार पे सामान खरीद रहे हैं, तो दे विल बिकम क्रेडिटर्स। इनको हम पेमेंट करेंगे आफ्टर सम टाइम, ओके, यानी कुछ टाइम के बाद हम उनको पेमेंट करेंगे। सो दे विल बिकम लायबिलिटी और डेप्ट ऑफ द बिजनेस, यानी वो बिजनेस के लिए क्या बन गए? कर्ज बन गए, उधार, या आप कह सकते हैं कि देनदारी, है ना। सो डेटर्स आर द एसेट एंड क्रेडिटर्स आर द लायबिलिटीज। ये दोनों उल्टे एक दूसरे से उल्टा चलेंगे, ठीक है। डेटर्स आर द एसेट क्योंकि इनसे हम रिसीव करेंगे, क्रेडिटर्स आर द पर्सन टू whom we will make the payment, so they will become the liability। अब हम आते हैं परचेजेस। परचेजेस क्या है? जो भी सामान हम खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, वो हमारी परचेजेस है, ठीक है। परचेजेस आर द गुड्स वेदर परचेज्ड इन कैश और परचेज्ड इन क्रेडिट, चाहे हम उधार पे खरीदें चाहे हम कैश में खरीदें, दोनों ही कंडीशन में जो भी सामान हम खरीद रहे हैं वो हमारा परचेजेस होगा। अब इसमें हम जो परचेजेस की बात करते हैं तो दे आर द गुड्स, वो गुड्स वाली परचेजेस होंगी। गुड्स क्या है? जिनके अंदर बिजनेस डील करता है। द बिजनेस इज डीलिंग इन व्हाट काइंड ऑफ गुड्स दैट वी विल टेक। क्लियर हो गया? आफ्टर दैट सेल्स। सेल्स इज द गुड्स सोल्ड बाय द बिजनेस वेदर इन कैश और इन क्रेडिट, यानी जो भी सामान, जो भी गुड्स बिजनेस सेल करेगा ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस, या उधार पे या कैश में, उनको हम सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ परचेज और सेल्स, अब इसमें हमारा जो एक आता है वर्ड्स गुड्स, गुड्स इज कॉमन इन बोथ, गुड्स आर परचेज, गुड्स आर सोल्ड आउट, ठीक है। तो इसलिए हम जब बिजनेस में रिकॉर्डिंग करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वी डोंट रिकॉर्ड इट एज गुड्स केम इन और गुड्स वेंट आउट, नॉट लाइक दैट। वी रिकॉर्ड देम, जो गुड्स हम परचेज करेंगे उनको हम परचेजेस बोल देंगे और जो गुड्स सोल्ड आउट करेंगे उनको हम सेल्स बोल देंगे। तो उन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंशिएट कर दिया सो दैट द कंफ्यूजन शुड नॉट टेक प्लेस, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेड आ जाता है एसेट। अब एसेट्स, अभी मैंने ऊपर नाम लिया, ट्रेड डेटर्स आर द एसेट्स। एसेट आर द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस, यानी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी चीजें बिजनेस के ओनरशिप में आती हैं, दे आर ट्रीटेड एज एसेट। वो लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है, ओके, कंप्यूटर हो सकता है, टाइपराइटर हो सकता है, एंड स्टॉक ऑफ गुड्स भी हो सकता है। लाइक जो भी सामान उन्होंने खरीदा हुआ है परचेजेस के अंदर, वो भी हमारा किस में आ जाएगा? स्टॉक के अंदर। तो वो स्टॉक भी हमारा क्या है? एसेट है। और अगर बिजनेस में कुछ कैश पड़ा है वो भी एसेट है, और बिजनेस बैंक बैलेंस है वो भी एसेट है, यानी ऑल द एसेट्स आर देयर, ओके। सो जो भी चीज बिजनेस की ओनरशिप में आती है उसको हम एसेट बोलेंगे। अब यहाँ पर एसेट आपकी डिफरेंट टाइप्स की है, अगर आप अपनी बुक्स में कंसल्ट करेंगे सो यू विल फाइंड दैट देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ एसेट इन द बिजनेस। अब कौन कौन सी एसेट्स है? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब जो बहुत लंबे टाइम तक सेम रहती है। लाइक अगर आपने एक बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग को आप 15, 20, 50 साल तक यूज कर सकते हैं, तो दैट इज अ फिक्स्ड एसेट। सेम वे लैंड इज देयर। सेम वे अगर मैं फर्नीचर की बात करूं, फर्नीचर इज परचेज फॉर द बिजनेस। सो जो भी फर्नीचर बिजनेस के लिए परचेज हुआ है वो 10 या 12 या 15 साल तक बिजनेस में यूज होगा, सो इट इज अ फिक्स्ड एसेट। क्लियर हो गया? फिक्स्ड एसेट कौन सी है? जो बहुत लंबे टाइम तक बिजनेस की प्रोडक्शन को या अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर आते हैं हम सीए, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो है जो हर ईयर आफ्टर ईयर चेंज होती रहती है। लाइक अगर मैं बोलूं कैश बैलेंस, कैश बैलेंस आज हमारे पास कैश है, कल हमारा कैश बैलेंस बदल सकता है, 2 महीने बाद कुछ और हो सकता है, 3 महीने बाद कुछ और हो सकता है। सेम वे अगर मैं बात करूं स्टॉक ऑफ गुड्स, तो स्टॉक ऑफ गुड्स आज हमारे पास अगर 2 लाख का स्टॉक पड़ा है, कल हो सकता है उनमें से कुछ सेल हो जाए तो हमारे पास 1.5 लाख का बच जाए, और फिर हम कुछ और परचेज कर ले, फिर से हमारे पास 2.5 लाख का हो जाए। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द ईयर। सो इनको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? स्टॉक हो सकता है, कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, एंड आपके डेटर्स हो सकते हैं, जो हमने ऊपर डेटर्स की बात करी। जब जब हम सेल करेंगे डेटर्स विल इंक्रीज, और जब वो डेटर्स हमें पेमेंट कर देंगे डेटर्स विल डिक्रीज, लाइक दिस। फिर आता है हमारा एक पार्ट आता है फिक्टिशियस एसेट। Fictitious asset are those assets which are actually not the asset but they are a certain kind of expenditure, यानी वो एक तरह के expenses हैं
जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस डन ओनली वन टाइम, यानी एक ही बार किए जाते हैं फॉर स्टार्टिंग अप द बिजनेस, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर देयर, ओके, या बहुत ज्यादा कोई आप एक्सपेंसेस इस तरह के करते हो जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, सो दे आर डन वंस ओनली, सो उनको हम क्या मान लेते हैं, फिक्टिशियस एसेट मान लेते हैं। फिक्टिशियस का मतलब ही होता है एज्यूमिंग एज एसेट, ओके, बट दे आर द एक्सपेंसेस बट वी एज्यूम देम एज एसेट, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट होती हैं जिनकी वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज होती है, लाइक माइंस की बात करते हैं। माइंस, यू माइट हैव हर्ड द वर्ड माइंस। माइंस मतलब लाइक गोल्ड की खान हम कहते हैं, सोने की खान, या मिनरल्स की खान, कोयले की खान। तो वो जो लैंड होती है जिसके अंदर माइंस होती है, जिसमें से ड्रैग आउट करके मिनरल्स निकाले जाते हैं, तो जैसे जैसे हम मिनरल्स उनमें से निकालते जाते हैं उनकी वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम द वेस्टिंग एसेट्स, ओके। तो माइंस आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर वेस्टिंग एसेट्स। देन कम्स द लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स वो है जिनको हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैश में कन्वर्ट का मतलब क्या है, एकदम से आप कैश में उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं गोल्ड, गोल्ड को आप अभी मार्केट में सेल करने जाइए, उसके बदले में आपको कैश मिल जाएगा। वहीं आपके पास एक लैंड है, आप लैंड को सेल करने जाएंगे, इट कैन टेक अ वेरी लॉन्ग पीरियड। ये आपके 2 महीने भी ले सकती है, 6 महीने भी ले सकती है, और 1 साल भी ले सकती है सेल होने में। लेकिन जो गोल्ड या आपका ऐसी चीजें लाइक क्विकली करंट इन्वेस्टमेंट्स आर देयर, जो क्विकली कन्वर्टेबल हो जाती हैं कैश के अंदर, या आपका बैंक बैलेंस होता है, आप बैंक जाइए कैश निकाल लाइए, सो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, लिक्विड एसेट। ऑलरेडी दे आर द करंट एसेट्स, और यू कैन से दे आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट, ओके। सो लिक्विड एसेट आर दोज एसेट विच कैन रेडिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, एंड कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। कैश को हम सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट बोलते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी कैश में ही होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा, लाइबिलिटीज। अब जैसे मैंने अभी एसेट बोला और मैंने बोला क्रेडिटर्स आर द लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का मतलब क्या है, वॉट एवर आर द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस, यानी जो भी बिजनेस की देनदारियां हैं, लाइबिलिटीज हम उनको बोल देते हैं, यानी हमारे कर्ज, इन द लोन्स कह सकते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, लाइबिलिटीज हो जाती है। अब लाइबिलिटीज में आपके बैंक लोन्स भी आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी आते हैं, है ना। ये सब लोन्स हैं जो कि बिजनेस ने पे करने हैं टू द आउटसाइडर्स, ओके। नाउ लाइबिलिटीज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 2 तरह की है आपकी। इंटरनल वो है जो कि ओनर को देनी होती है, लाइक ओनर्स कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल वो मनी होती है जो कि बिजनेस में पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है। Like if I am starting a business and I have invested 4 lakh rupees in the business, that 4 lakh is the capital. वो 4 lakh आपका क्या है, कैपिटल इन द बिजनेस, और वो इंटरनल लाइबिलिटी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने 2 लाख रुपए बैंक से बोरो किए, 1 लाख रुपए अपने फ्रेंड से बोरो किया, तो वो जो 2 लाख और 1 लाख है वो हमारी क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ओके। सो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमारी the liabilities which are outsider one, or we have borrowed the money from outsiders, they will become external liability. अब external liability भी आगे आपकी कितनी तरह की है, क्योंकि capital is internal, तो capital तो आपकी अलग ही चीज हो गई। एंड देन आता है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज, मैंने इसको भी शॉर्ट में लिखा है NCL, दैट मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटीज, द लाइबिलिटीज विच आर देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। लाइक इफ आई हैव बोरोड अ लोन फ्रॉम बैंक, मैंने एक बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का 10 साल के लिए, तो 10 इयर्स तक वो हमेशा मेरे अकाउंट्स में स्टैंड करता रहेगा, दैट 10 ईयर आई हैव बोरोड फ्रॉम बैंक, एंड टिल द टाइम आई विल नॉट मेक द पेमेंट टू द बैंक, दैट विल रिमेन एज माई बैंक लोन, ओके। सो वो आपकी हो गई नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। जो भी लंबे टाइम के लिए आपने लोन्स बोरो किए वो नॉन करंट में आएंगे। फिर आती है हमारी करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है, लाइक शॉर्ट टर्म लोन्स। कोई भी आप शॉर्ट टर्म लोन बैंक से बोरो करें 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 15 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, सो वो सारे जो आपके लोन्स हैं वो किस में आएंगे, करंट लाइबिलिटीज के अंदर। और दूसरा करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा आपका, क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है, जिनसे हमने गुड्स परचेज करी क्रेडिट के ऊपर,
अब हमने उनको 15 दिन बाद पेमेंट करनी है या 2 महीने बाद करनी है या महीने बाद करनी है, सो दैट विल बी टेकन एज द करंट लायबिलिटीज. ओके, देन कम्स कंटिंजेंट लायबिलिटी. अब कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है आपका? कंटिंजेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच मे और मे नॉट बी पेएबल. यानी एक लायबिलिटी, वो लायबिलिटी आपकी पेएबल भी हो सकती है और नॉट पेएबल भी हो सकती है. अब इसका एग्जांपल आपको मैं समझाती हूं. लाइक इफ यू हैव टेकन अ गारंटी फॉर योर फ्रेंड इज बोरोइंग द मनी फ्रॉम द बैंक. ओके, यानी आपका एक फ्रेंड लोन के लिए अप्लाई कर रहा है. सो लोन जब भी बैंक इशू करता है तो उसके लिए वो क्या मांगता है? गारंटी मांगता है. सो यू हैव गिवन द गारंटी फॉर योर फ्रेंड. आपने उसकी गारंटी ले ली. अप टिल द टाइम योर फ्रेंड विल मेक द पेमेंट ऑफ द लोन इंस्टॉलमेंट, तब तक तो बैंक आपसे कोई भी इंक्वायरी या कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा. लेकिन इन सडन केस, यानी समथिंग हैपन्स और सम इवेंट हैपन्स दैट योर फ्रेंड इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, यानी आपका फ्रेंड वो डेप्स अपने अपना लोन देने में इनएबल है या नहीं दे पा रहा है, या आप कह सकते हैं इंटेंशनली नहीं दे रहा, दोनों कंडीशंस के अंदर. सो बैंक किसके पास आएगा? गारंटर के पास. सो एट दैट टाइम यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ योर लोन विच यू हैव नॉट बोरोड एट ऑल. So that's why we call it contingent liability. So this contingent liability may become a real liability on the happening of a certain event. Okay? यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं आगे गुड्स ट्रेडेड इन. अब हम गुड्स ट्रेडेड इन किसको बोलते हैं? वो गुड्स जिनके अंदर बिजनेस डीलिंग कर रहा है, ट्रेड कर रहा है. ओके, सो गुड्स ट्रेडेड इन हमारी वो गुड्स हैं जो बिजनेस खरीद रहा और सेल कर रहा है. यानी पहले परचेज देन सेल, परचेज सेल, यानी एक ट्रेडिंग बिजनेस इज देयर. सो हम गुड्स किसको बोलेंगे? लाइक अगर एक पर्सन जो है वो स्टेशनरी में डील कर रहा है तो उसके लिए स्टेशनरी क्या है? गुड्स है. एक पर्सन अगर फर्नीचर में डील कर रहा है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है. लेकिन जो पर्सन स्टेशनरी में डील कर रहा है, जब वो फर्नीचर खरीदेगा अपने ऑफिस के लिए, दैट फर्नीचर विल बी एसेट फॉर हिम. ओके, लेकिन जो पर्सन फर्नीचर में डील कर रहा है, वो जब फर्नीचर खरीदेगा तो उसके लिए वो फर्नीचर क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा, बिकॉज ही इज डीलिंग इन दैट फर्नीचर ओनली. ओके, सो गुड्स आर दैट थिंग इन विच द बिजनेस डील्स. और जो आपका गुड्स हो गई, उसके अलावा जो भी वो खरीदेंगे वो हमारी क्या हो जाएंगी? एसेट्स हो जाएंगी. ठीक है. इसके बाद आता है हमारा स्टॉक और यू कैन से इन्वेंट्री, जिसको हम न्यू टर्म जब हम कंपनी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम इसको इन्वेंट्री बोलते हैं, स्टॉक नहीं बोलते. बट यहाँ पर हमारा अभी स्टॉक ही चलेगा. सो स्टॉक मीन्स कोई भी सामान आपने जो भी आपके बिजनेस में पड़ा हुआ है उसको हम स्टॉक बोलते हैं. ठीक है. अब स्टॉक आपके दो तरह के हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. यानी स्टॉक को कब वैल्यू किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर. तो जो आप एंड पे कैलकुलेट करेंगे वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, और एक साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक. ओके, सो द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर. ओके, एंड देन अगेन अगले साल आपने ओपनिंग से स्टार्ट किया, फिर आपके एंड में जो स्टॉक है वो आपका क्लोजिंग हो गया, और उससे अगले साल में फिर से वो ओपनिंग बन जाएगा. ठीक है. अब स्टॉक में क्या क्या चीजें आती हैं? दैट ऑल्सो आई हैव रिटन इन शॉर्ट. वन इज योर रॉ मटेरियल. अगर आप अपनी बुक से इसको देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी से अच्छे से टर्म्स मिल जाएंगे सारे. रॉ मटेरियल दैट मीन्स कच्चा माल. यानी जैसे अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो फर्नीचर बनाने का काम कर रहा है, तो जो भी फर्नीचर वो बना रहा है उसके लिए जो वो वुड वगैरह खरीदेगा, लकड़ी खरीदेगा, स्क्रूज, ये फेविकॉल एटसेट्रा जो भी खरीदेगा, वो सब उसका क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल. फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस. लाइक हाफ बना हुआ सामान, इसको हम सेमी फिनिश गुड्स भी बोलते हैं. सेमी फिनिश मतलब आधा बना हुआ और आधा कच्चा. यानी आपका फर्नीचर आधा बना हुआ है और अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, तो उसका जो स्टॉक होगा वो भी स्टॉक में ही ऐड होगा. ठीक है. और फिर आता है हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक. फिनिश गुड्स कौन सी है? जो गुड्स हमारी बिल्कुल रेडी होके पड़ी है. ओके, उनका स्टॉक. यानी इन तीनों को मिला के जो भी सामान बिजनेस के अंदर पड़ा है उस टोटल को हम क्या बोलेंगे? स्टॉक. क्लियर हो गया? तो स्टॉक में आपका रॉ मटेरियल भी आएगा, सेमी फिनिश भी आएगा और फिनिश भी आएगा, तीनों पे सामान आएगा. यहां तक मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है. आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म इज योर प्रॉफिट. ओके, अब प्रॉफिट वर्ड आप लोगों ने बहुत पहले भी सुना होगा. लाइक आप लोगों ने सबने 8, 9, 10 मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा.
प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा। ओके, सो यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट से वही मतलब है। प्रॉफिट मतलब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हम अर्न कर रहे हैं बाय सेलिंग द गुड्स जिनके लिए हमने कुछ कॉस्ट भी स्पेंड की है। लाइक अगर मैंने एक सामान जो है वो 4 लाख रुपए में खरीदा और उसको आगे 5 लाख में सेल किया, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 5 लाख है और जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो 4 लाख आ रही है। तो 5 लाख में से 4 लाख लेस करेंगे तो आपके पास जो 1 लाख बचेगा वो 1 लाख आपका क्या है, प्रॉफिट। क्लियर हो गया? सो अब प्रॉफिट कैन बी ग्रॉस प्रॉफिट ऑल्सो एंड नेट प्रॉफिट ऑल्सो। ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो कॉस्ट में से निकलता है और उसके बाद कुछ और एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट जो है डायरेक्ट इनकम्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस से निकलता है, यानी एक्सपेंसेस को इनकम में से लेस करने पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और नेट प्रॉफिट आपका जो इनकम आ गई ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से अगर और आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। इसको अभी बहुत डिटेल में जब हम आपका चैप्टर फाइनल अकाउंट्स वाला करते हैं तो इसमें एक पूरा अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। सो उसमें हम इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द लॉस। अब लॉस क्या है आपका, अगर आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट से कम है तो वो लॉस है ना। लॉस का मतलब क्या, नुकसान हो गया, यानी आपने खर्चा ज्यादा कर दिया लेकिन जो इनकम आ रही है वो आपकी कम आ रही है, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो इसको भी आप, इसके अंदर भी आपका ग्रॉस लॉस और नेट लॉस आता है सेम, और उसी से बनाया जाता है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट हेड पे, हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब जो भी खर्चे हम करते हैं उनको हम एक्सपेंस बोलते हैं। लाइक अगर आप बिजनेस चला रहे हैं और आपने जो जगह ली हुई है बिजनेस चलाने के लिए वो रेंट पे ली हुई है, यानी किराए पे ली हुई है, तो दैट रेंट इज एन एक्सपेंस। अगर आपने कुछ लोन बोरो किया है उसका जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, वो आपका एक्सपेंस है। ओके, अगर आपने 2 वर्कर्स रखे हैं, वर्कर्स को जो आप पेमेंट कर रहे हैं उनकी वेजेस की, वो वेजेस आपकी एक्सपेंस है। अगर आप एक ऑफिस का पर्सन रखा है उसको आप सैलरी दे रहे हैं, वो भी आपका एक्सपेंस है। यानी जो जो खर्चे आप कर रहे हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एक्सपेंसेस में। ठीक है, अब वेजेस वर्कर्स को दी जाती है और सैलरी जो है वो ऑफिस स्टाफ को दी जाती है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है लेकिन थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करके चलते हैं। देन कम्स द रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या है, जो भी हम रिसीव कर रहे हैं, लाइक हमने जब सेल करी तो सेल का जो प्राइस हमें रिसीव होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। रेवेन्यू आर द रिसिप्ट्स, यानी जो भी हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारी रेवेन्यू है। ओके, लाइक अर्निंग जो भी हम करेंगे, रेवेन्यू जो हम रिसीव करेंगे अमाउंट, उसको हम टोटल को रेवेन्यू बोलेंगे। अब इनकम हम कब बोलेंगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमें इनकम मिलेगी। इनकम का मतलब जो हमारी अर्निंग है, यानी रेवेन्यू, हमें सेल का अमाउंट तो हुआ रिसीव 5 लाख रुपए और एक्सपेंस हमारे थे 4 लाख रुपए के, तो जो 1 लाख हुआ वो हमारा इनकम कहलाएगा क्योंकि हमें 1 लाख ज्यादा रिसीव हुआ फ्रॉम द एक्सपेंसेस। ओके, सो ये आपका प्रॉफिट और इनकम कैन बी सेम फॉर अ बिजनेस। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स क्या होता है, अब इसको आप ड्रॉइंग नहीं पढ़ेंगे, ड्रॉइंग्स पढ़ेंगे। ड्रॉइंग्स इज द अमाउंट विच द ओनर हैज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। यानी कोई भी, जो भी ओनर बिजनेस चला रहा है, लाइक एक्स इज रनिंग अ बिजनेस, तो एक्स जो है वो 5,000, 10,000, 15,000 हर महीने निकाल रहा है बिजनेस से अपने घर के खर्च के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। क्योंकि बिजनेस जो है वो सेपरेट है और ओनर के पर्सनल एक्सपेंडिचर सेपरेट है, सो इसलिए हम इसको इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। और अगला टर्म हमारा कैपिटल, ये भी इससे रिलेटेड है, यानी जो भी मनी ओनर जो है वो बिजनेस में लगाएगा वो आपकी कैपिटल कहलाएगी और जो भी वो विड्रॉ करेगा वो ड्रॉइंग्स कहलाएगी। ये दोनों हेड्स आपके किससे रिलेट करते हैं, ओनर से। ओके, सो द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल and the money withdrawn by the owner for his personal use will be treated as drawings. Okay, so hope ये वाले important terms जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैंने सब बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और आगे कुछ और important terms हैं that I will be taking in my next video. Okay, so hope इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। So students, see you in my next video.
and that video will also be related to this basic terms only, and I will take the other important terms in that. Okay students, bye bye.